व्हाट इज साउंड? ये जो आवाज थी वो एक आवाज थी, लेकिन आवाज एक्चुअली में जितनी इजी हमें लगती है सुनने में उतनी होती नहीं है. साउंड isn't that easy that much we can think. Sound is a vibration that travels through the medium such as solid, liquid, gas and air. But how does this sound is formed? See, actually sound is formed due to vibrations. When an object hits another object or when an object creates vibration, its pressure waves in the medium, pressure waves can be created or is created in the medium, which our ear can detect as sound. So this was the basic definition of sound. But today we will learn about sound, how scientifically the word itself is, and how fantastic or how fascinating the word it can be. So there are two waves, or there are two kind of waves in sound, which are longitudinal waves and transversal waves. Longitudinal waves are the most basic waves which we can see in the hospitals or sonography machines, X-ray rays in that. And जो transversal waves होती हैं, they are kind of here in the music propagation sounds. They are for example, when we make a music video or when we create a music in a laptop or in any device, so in that the transfer waves comes. Most primarily we use the longitudinal waves. To prefer that, more importantly, we use the transfer waves. So most importantly, sound is a form of energy, and sound is that form of the energy which makes us hear. So, for example, when we play a guitar or when we pull out a slinky is a type of spring. When we stretch it, it contracts, and then it creates a contraction and rarefaction. Rarefaction means the part where the objects or the particles are very closely densed or their density is very high, and rarefaction rarefaction means where the objects of the density of the objects is very low, they are very far away from each other. So in a guitar also, when we pull out a string or when we play a string like this, the string vibrates and creates a sound cause it is creating a pressure waves. That's why we hear this. So now, as I told you, there are two waves of the sound. First is longitudinal waves, second is transversal waves. So what are longitudinal waves? A wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction, which means when let's say this particle A and B is going in this direction, so they are vibrating like this. This is what known as the longitudinal waves. These particles vibrates back and forth to go in the particular direction. For example, the sound which I am creating now from my mouth, the particles from my mouth or the energy which I am releasing is going in the form of longitudinal wave, cause the particles are vibrating back and forth to move in the one particular direction. So for this experiment we can use a slinky. This will show the best example of the longitudinal waves, as when you pull the slinky and release it, it will just contract, then it will form a rarefaction form in which the slinky's particles or the strings are very far from each other or not that close, in which the particle which will come after the rarefaction. So this was the longitudinal waves. Now we will move to the next wave, which is ट्रांसवर्सल वेव्स. अब आगे जाने से पहले हम लोग पहले दो तीन डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. पहले एक वेव क्या होती है, मतलब जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं. तो वेव्स एक्चुअल में क्या होती है? अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. फॉर एग्जांपल, एक लोडेड ट्रक में आपका पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे एक सामान जा रहा है. तो जो ट्रक है वो साइंटिफिक भाषा में हम लोगों के लिए एक वेव है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर कर रहा है, तो वो होती है एक वेव। फॉर एग्जाम्पल एक कार्गो एरोप्लेन ले लो जो हवा में उड़ के पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जा रहा है। तो जो पॉइंट ए में जो उसने अपनी एनर्जी रखी, जो एनर्जी मतलब हम लोगों के लिए एनर्जी, लेकिन पॉइंट ए जो रियल लाइफ में क्या रखा हुआ, कोई कार रखी होगी या कोई बहुत सारी चीजें होती हैं जो रखी जा सकती हैं। तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, फिर वो पॉइंट बी पे उतरी। तो हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, एरोप्लेन एरोप्लेन है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो हम उसे वेव से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक एरोप्लेन पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक एनर्जी को, या हम लोगों के लिए एनर्जी है क्योंकि वो एनर्जी को ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे डिस्प्लेस करके एक जगह लेकर जा रहा है। तो वेव का भी यही काम होता है, वो एनर्जी के पार्टिकल्स या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। सो दिस इज व्हाट नोन एज दी वेव्स। अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है? कंप्रेशन माने कि एक जगह जिधर हाई डेंसिटी पार्टिकल्स रहते हैं, और रेयरफेक्शन वही पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे कि साउंड में, तब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे मुंह से जो अभी एनर्जी निकल रही है वो कंप्रेशन के फॉर्म में निकल रही है, क्योंकि अभी जो पार्टिकल्स वो काफी ज्यादा डेंस्ड है। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी अभी एकदम अपने हाई लेवल पे है। लेकिन तभी मैं अभी तब शांत हुआ तो जो पार्टिकल्स थे उनमें रेयरफेक्शन हुआ। क्यों? इसलिए हुआ बिकॉज उसमें एनर्जी लेवल काफी कम था। तो देखा जाए तब आप शांत रहते हैं या धीरे बोलते हैं तो उसमें कंप्रेशन नहीं देखा जाता, उस समय रेयरफेक्शन देखा जाता है। तो दिस इज व्हाट नोन एज बी कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। नाउ व्हाट इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट होके जाती है परपेंडिकुलर टू दी मीडियम लाइन। अब मीडियम लाइन क्या होती है? मीन पोजीशन। मतलब हम लोगों ने एक बार ग्राफ में एक ऐसी लाइन खींची, ये उसकी मीडियम लाइन हुई कि इसके नीचे नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव। तो साउंड वेव्स में इसके नीचे, इसके ऊपर हमारा क्रेस्ट रहता है, इसके नीचे हमारा ध्रुव रहता है। क्रेस्ट माने तब वॉइस काफी ज्यादा ऊपर जाए, वो होता है क्रेस्ट। और नीचे तब जाती है, तब वॉइस नीचे जाती है, तो वो होता है ध्रुव। ये जो लाइन होती है इसको हम साइंटिफिक भाषा में लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, क्योंकि तब कोई भी वॉइस इस लाइन के एकदम स्ट्रेट, इस लाइन को एकदम फॉलो कर रही होती है, इसकी एकदम पैरेलल चल रही होती है ऐसे, तो उस समय जीरो जीरो साउंड होता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, तो जैसे कि अभी मैं कुछ नहीं बोलता, तो अभी उतनी देर के लिए जो साउंड वेव्स थे या जो साउंड पार्टिकल्स थे वो उस लाइन के साथ थे, लेकिन जैसे ही मैंने बोला जो साउंड वेव्स के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर आना शुरू हुए, और जैसे ही मैं धीरे धीरे मेरी एनर्जी बातों की कम हुई वो दोबारा नीचे आए। तो जितना एक पार्टिकल या जितना एक साउंड की जो एक एनर्जी है वो जितना ऊपर जाएगी तो उसे उतना नीचे भी आना पड़ेगा, क्योंकि जितना, समझो कि एट दी एंड वॉइस को तो जीरो बनना ही है, जो हमारी वॉइस है उसकी एनर्जी एट दी सेम पॉइंट जीरो तो होनी है। तो जीरो होने के लिए जितना वो पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव हम लोग इसको भी क्रेस्ट की भाषा में रहते हैं, और जितना निगेटिव जा रही है उसे हम ध्रुव की भाषा में रहती है। तो जितना वो क्रेस्ट ऊपर होगा उतना ही नीचे ध्रुव होना कंपलसरी होता है। कंपलसरी क्या, ये एक फिनोमेना है जो हमेशा होता ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी साउंड्स। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेन उनमें से होता है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवफॉर्म एंड हमारा टाइम पीरियड। मेन आज हम लोग फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और हमारा वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। वेवलेंथ मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में जैसे जो वेव पॉइंट बी है और जो पॉइंट एफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाया जाएगा। लेकिन अगर यही पॉइंट एफ के आगे भी कोई और साउंड वेव होती तो बी से लेकर
उसका हम हाइपोथेटिकली नाम दे देते हैं जी। तो जो बी से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो कॉन्जिक्यूटिवली दो साउंड वेव्स के बीच में ही देखा जा सकता है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव साउंड वेव्स वो सिर्फ दो के दो कॉन्जिक्यूटिव साउंड वेव्स में ही देखा जा सकता है। दूसरा होता है हमारा, और आगे बढ़ने से पहले जो हमारा वेवलेंथ होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, और इसको हम एक उल्टा मतलब वाई बोल लो, वो उसका डिनोशन फॉर्म होता है या डिनोशन लेटर जिससे हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Amplitude is basically the length between the zero line of distance and the highest point of the crust or crest. So what is amplitude? Amplitude means how high the volume is. अगर जैसे कि अगर मैं अभी बहुत तेज बात करूंगा तो जो क्रेस्ट है वो ऊपर गया, तो वो जो जीरो लाइन है आपका, जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, उससे जितना ऊपर गया और उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए मतलब अभी सबसे हाईएस्ट गया, तो जो क्रेस्ट है वहां से और पॉइंट ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में होता है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मतलब ऐसी कोई मतलब दी नहीं गई है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बेसिकली हमारा वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग वो होता है वेव की, मतलब वो वेव जो है जो वाइब्रेट होकर साउंड क्रिएट कर रही है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। दूसरा होता है टाइम पीरियड। अब देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अपने आप में बहुत मतलब बोलो तो खतरनाक चीज है, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर दोनों की डेफिनेशन उल्टी है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। मतलब एक वेव को, ये एक ऑसिलेशन वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। मतलब साउंड की स्पीड होती है आई थिंक 343 मीटर पर सेकेंड, वो जो स्पीड है वो कैसे निकाला? टाइम पीरियड माने मतलब जो मेरी अभी आवाज आप तक सुनाई दे रही है वो इतनी जल्दी कैसे सुनाई दे रही है, वो होता है टाइम पीरियड। मतलब जैसे कि तब एक साइकिलिस्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाता है, तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस है तो उसे कितना टाइम लगा होगा? 1 घंटा लगा होगा। तो इसी टाइप से टाइम पीरियड मतलब मेरे एक वर्ड को या एक पूरे सेंटेंस को पहुंचने में अपना जितना टाइम लग रहा है वो होता है टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब फ्रीक्वेंसी देखा जाए, अगर आप लोग वन सेकेंड या 2 सेकेंड बोलो, 1 सेकेंड में मैं एक बार बोलता हूँ साइंस, 2 में मतलब साइंस साइंस, फिर 3 में आप 3 सेकेंड गिनो 1 2 3 ऐसे साइंस 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 साइंस। तो 3 सेकेंड में एक चीज कितनी ज्यादा बार अपने आप को रिपीट कर सकती है वो होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 सेकेंड के अंदर ही नापी जाती है, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर वो चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर सकती है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, जिन्हें हेनरिच हर्ट्ज ने डिनोट किया था, उसका एच और स्मॉल जेड होता है, एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। और ऐसे मतलब अगर हमने मतलब वर्क एनर्जी के चैप्टर में भी पढ़ा है 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्ज। तो ये तो मैं बहुत एक बेसिक सा वो है कन्वर्जन, तो वो हम लोग कर ही लेंगे। तो अब एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो और जो टाइम पीरियड होता है वो दोनों की रेसिप्रोकल है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि टाइम पीरियड एक पूरी वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो होता है, और फ्रीक्वेंसी एक वेव 1 सेकेंड में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर पा रही है वो होती है फ्रीक्वेंसी। टाइम हम हमेशा सेकेंड में डिनोट करते हैं, एंड लेटर टी कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम को, एंड
फ्रीक्वेंसी को, जैसे मैंने कहा, हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है, SI यूनिट उसकी हर्ट्ज रहती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इन विच थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी है। दूसरा हमारा साउंड वाइब्रेशन के थ्रू एयर में कैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, वो सब अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।